Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study. And by the request of one of our viewer Sucheta, she insisted me to upload the video on group decision making techniques. So here is the session. Here we are going to cover the different techniques of group decision making. So first we will see what exactly mean the group decision making process. So group decision is nothing but the collaborative decision. So every member they come together. What is mean by the group? Group means what? Where two or more people they come together. That is what the group. And the decision making means what? Every member they are sharing their thoughts, and by considering each and every person's ideas, thoughts or their suggestion, collectively it make a choice to choose from the alternatives before them. So this is what the group decision making. So here are the techniques: brainstorming, nominal group technique, Delphi technique, devil's advocacy, electronic meetings, fish bowling, didactic interactions and interacting groups. First we will see what exactly mean the brainstorming. Brainstorming ये concept develop किया है by Alex Osborne. It provides the opportunity for everyone to generate the ideas, opinion, their suggestion. They can share this in a comfortably with along with their other members. That is what the brainstorming मतलब किसी एक टॉपिक के ऊपर you can share your thoughts comfortably with your member. That is what the brainstorming है ना. And it is a spontaneous process. ऐसा नहीं कि पहले से आपको टॉपिक दिया जाता है. आपको टॉपिक दिया जाएगा, जो भी कोई प्रॉब्लम है कंपनी फेस कर रही है तो उसके ऊपर जो आपको लगता है वॉट एवर यू हैव एन आइडियाज़ दैट यू सपोज टू शेयर विथ all the members spontaneously. That is what the brainstorming. So this is one kind of opportunity to everyone, and it encourage people to share their ideas, suggestion. So in this brainstorming the criticism of idea is not allowed. इससे क्या होगा? अगर क्रिटिसिज्म होगा तो पीपल विल नॉट कम फॉरवर्ड एंड दे शेयर देयर थॉट्स. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में उनको इनकरेज किया जाता है सो दे कैन शेयर देयर सजेशंस. So all these ideas, whatever the all members has been given, so that has been written on the blackboard, whiteboard, whatever available, in such a way that कि all team members can see every idea and they try to improvise this idea. जैसे कि 20 लोग वहाँ पे है एक हॉल में और उन्होंने इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो 20 लोग हैं अगर दो भी अगर वो सजेशन या आइडियाज़ देते तो विल गेट अराउंड 40+ आइडियाज़. ओके, तो ये जो भी 40 आइडियाज़ रहेंगे ना तो उसको एक बोर्ड पे लिखा जाएगा वहाँ पे. तो अगर किसी को वो पॉइंट को आगे कंटिन्यू करना है, उसमें कुछ इम्प्रूव करना है, तो दे कैन सी ऑलरेडी उस बोर्ड पे क्या क्या है, तो उनको एक कंपैरेटिवली वो एक डिसीजन ले सकते हैं. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है? दिस इज़ द टेक्निक. It is very effective when the problem is precise and when it has been explained in simplified way. So if the problem is in a complex mode, so you can divide into two parts. कि जो भी simpler one पहले decide करो, फिर दूसरा जो है part that you can decide in next time. So दिस इज़ वॉट द ब्रेनस्टॉर्मिंग. अगर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं तो कोई अगर ये टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है कि वाई व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ दैट यूर एम्प्लॉयज़ हैव द लैक ऑफ मोटिवेशन. तो हर कोई अपना अपना अलग आंसर दे सकता है कि जैसे कोई बोलेगा कि उनकी सैलरी का इशू है, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या कुछ पर्सनल रीज़न है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, पॉलिसीज़ क्लियर नहीं है, राइट, उनके प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम्स है. सो ये सारी चीज़ें ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम आ जाएगी बिकॉज एवरीवन इज़ शेयरिंग हिज और हर थॉट्स. दिस इज़ व्हाट द ब्रेनस्टॉर्मिंग. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? लोगों इनकरेज किया जाता है, आपके ओपिनियन को यहाँ पे एक्सप्रेस करना होता है. द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग. सो अगर आपको कंसिडर अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग कंसेप्ट समझ में अगर आया होगा तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द एंड्रे डलबक एंड द एंड्रू वैन डेवन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉसिन. सो दिस टेक्निक इज़ सिमिलर टू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे इंटरेक्शन है लिमिटेड है.
ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता था, आपके मन में जो भी थॉट्स आते थे यू कैन ईजीली एक्सप्रेस, डायरेक्टली आप बोल सकते थे, और बोलने के बाद वो लिखते थे, ओके। और सब जो भी वॉट एवर द मेम्बर्स आर अवेलेबल इन पर्टिकुलर लोकेशन, एवरी वन कैन सी, कैन रीड एंड कैन ऐड ऑन दिस, ओके। बट नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग में क्या होता है, इंटरेक्शन कम है, मतलब जो भी थॉट्स ईच एंड एवरी मेम्बर्स हैज़, that members has to write it down individually, they have to write it down silently, secretly, मतलब एक पेज दिया जाएगा उनको, उनके जो थॉट में आइडियाज़ है, सजेशन है, दे हैव टू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर सेपरेटली, एंड वो हर एक को वो लिखना है, और उसके बाद आफ्टर राइटिंग सब ने अपना अपना ओपिनियन देने के बाद वो फिर लिस्ट डाउन किया जाता है एक चार्ट पे, ओके। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। वहाँ पे क्या होता था ब्रेनस्टॉर्मिंग में, जैसे ही किसी के मन में पॉइंट आया लिख लो, दूसरा फिर बोलेगा फिर लिख लो, बट यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम दिया जाता है, एवरी वन हैज़ टू राइट इट डाउन ऑन पेपर, एंड देन उसके बाद विदाउट डिस्कशन उनको वो लिखना है, उसके बाद वो चार्ट पेपर पे लिखा जाता है। देन दिस आइडिया, वॉट एवर द आइडियाज हैज़ बिन रिटन ऑन द चार्ट, फर्दर दे डिस्कस वन बाई वन, okay, and each participant is motivated to comment on these idea. सपोज एक बंदे ने कुछ आइडिया दिया है जो उसने पेपर पे लिखा था, 2 ने लिखा, 3 ने लिखा, 10 लोगों के पास वो चिट थी, उसके बाद वो पेपर पे लिखा गया। नाउ जो चार्ट पेपर पे आने के बाद फिर अभी पर्टिकुलर पर्सन से पूछा जाएगा आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन, दैट यू हैव टू कमेंट ऑन दैट। सो डिस्कशन नॉट ओनली फॉर द क्रिटिसिज्म, the discussion is only to clarify the your point. So here needed to vote and each idea and allot it a rank. अभी जैसे कि 10 लोगों ने उनके 10 आइडियाज़ है पेपर पे लिखी, उसके बाद वो चार्ट पे लिखी गई, ओके। तो उसके बाद ओपिनियन लिया जाता है, रैंकिंग देना पड़ता है कि भैया ये जो आपने पहले दिया है आपकी आइडिया, इसके लिए आप कितना उसको कितना रैंक देते हो, कि फर्स्ट ये हमें ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, दूसरा। सो उनको रैंकिंग अलॉट करना पड़ता है एज पर द प्रायोरिटी। उसके बाद फिर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, कि ओके जिसको फिर हायर रैंकिंग होती है, हायर वोटिंग होता है, वो आइडिया और सोल्यूशन कंसिडर किया जाता है, ओके। सो अगर सेम एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों है, सपोज सैलरी के लिए 10 में से 5 लोगों को वही लगता है कि 10 में से 7 लोगों को यही लग रहा है कि बिकॉज ऑफ लेस सैलरी कि एम्प्लॉयज़ आर नॉट मोटिवेटेड, तो उसको पहला रैंक आएगा। दूसरा जो किसी ने पॉइंट रखा होगा कि कंपनीज़ का वर्किंग कंडीशन के कारण, तो वो दूसरा कितने लोग मानते हैं उसको, तो उसकी नेक्स्ट उसको रैंकिंग मिली। क्लियर? तो बेसिकली डिफरेंस क्या है नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग में, यहाँ पे विदाउट डिस्कशन आपको आपके थॉट किसी से डिस्कस नहीं करने हैं, डायरेक्टली आपको पेपर पे लिखना है और उसके बाद वो चार्ट पे लिखा जाएगा, एंड देन यू कैन डिस्कस वन बाय वन. The next one is what? Delphi technique. It has been developed by the Norman and the Olaf. This technique, Delphi technique, is used for forecasting the future events. It is similar to the nominal group thinking. सेम है, जैसे हमने देखा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो कभी भी आपके जो थॉट्स है वो शेयर कर सकते हैं. नॉमिनल में हमने देखा कि उनको जो भी उनके थॉट है साइलेंटली सीक्रेटली पहले नोट डाउन करना है, फिर उसको बोर्ड पे जाने के बाद वो फिर एक्सप्लेन या डिस्कस करना है. बट डेल्पी में क्या होता है, यहाँ पे भी लोगों के थॉट ओपिनियन है वो कंसिडर होते हैं एक्सेप्ट द फिजिकल प्रेजेंट ऑफ मेंबर्स. ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो जो मेंबर है वो सब इकट्ठा बैठते हैं एंड देन डिस्कस. नॉमिनल में भी इकट्ठा बैठते हैं एंड देन दे हैव रिटन एंड देन इट विल डिस्कस. बट यहाँ पे क्या होता है डेल्पी में, दे आर नॉट प्रेजेंट फिजिकली. ओके, यहाँ पे एक्सपर्ट की टीम होती है, अराउंड 50 to 20 एक्सपर्ट्स, डिपेंड ऑन द टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर. तो ये जो एक्सपर्ट है दे आर सिटेड जियोग्राफिकली इन डिफरेंट एरियाज़. वो कोई सपोज रहेगा पूना में, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में,
ओके ये जो एक्सपर्ट हैं वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते एंड क्या किया जाता है कि उनको एक स्ट्रक्चराइज क्वेश्चनर सेंड किया जाता है टू द एक्सपर्ट ओके एंड उनको थ्रू द वेरियस कम्युनिकेशन चैनल जैसे कि कोई मेल भेजा गया होगा, आजकल तो व्हाट्सअप चलता है, तो उनको ऐसे कम्युनिकेशन चैनल से उनकी तरफ वो क्वेश्चनर भेजी जाती है एंड एक्सपर्ट हैज़ टू गिव देयर इंडिविजुअल आंसर टू पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है। ये जो एक्सपर्ट एक दूसरे को पता नहीं है कि दूसरा एक्सपर्ट कौन है, तीसरा कौन है, बिकॉज वो अलग अलग जगह पे बैठ रहा है, राइट। तो इससे क्या होता है कि इंटरेक्शन एक्सपर्ट के बीच में नहीं होता, ओके। और ये जो रिपोर्ट है एक्सपर्ट का रिपोर्ट फिर क्लब किया जाता है, उसकी समरी को कंसिडर करके फिर डिसीजन लिया जाता है। वह एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि नॉमिनल में क्यों बोला जाता है कि आप पहले पेज पे लिखो साइलेंटली, क्या होता है कि बाकी के जो भी कुछ बोल रहे हैं ना उसका इन्फ्लुएंस हमारे थॉट प्रोसेस पे आता है और वही हम कॉपी करते हैं, राइट। तो इसीलिए टू मेक दैट वो सीक्रेसी रखने के लिए नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग में इंडिविजुअल को बोला जाता है कि यू हाउ टू राइट इट डाउन योर ओपिनियन, ओके। सो दिलपी टेक्निक एक्सपर्ट में होती, एक्सपर्ट को कंसिडर करके होती है, उनको क्वेश्चनर भेजी जाती है एंड देन दे विल गिव देयर रिपोर्ट। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, डेविल्स एडवोकेट। इसमें क्या होता है कि एन इंडिविजुअल इज गिवन द रोल ऑफ क्रिटिक हुज टास्क इज कम अप विद द पोटेंशियल प्रॉब्लम इज प्रपोज्ड ऑप्शन। अभी इसमें क्या होता है, डेविल जो होता है ना उसका रोल ये रहता है कि एज अ क्रिटिक करना है, जो भी सजेशंस आए, जो भी ऑप्शंस आए ना उसको क्रिटिकली सोचना है, ओके। क्या क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम इस ऑप्शन में हो सकते हैं ना वो उसका सोचना, दैट इज़ द रोल ऑफ दिस क्रिटिक। सो आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल फ्लॉज, लूपहोल्स जो भी है, गैप क्या है, दैट आइडेंटिफाई इट ड्यूरिंग दैट ग्रुप डिस्कशन। अच्छी बातें नहीं बतानी, जो भी कमियां हो सकती है इस ऑप्शन में, ग्रुप डिस्कशन में जो थी, दैट उसको पॉइंट आउट करना, ये उसका रोल होता है। सो अदर ग्रुप मेंबर्स हैज़ टू रिस्पॉन्ड एंड सेटिस्फाई हिम विद द सोल्यूशन ऑन द प्रॉब्लम रेज। उस बंदे ने जो भी प्रॉब्लम रेज किए होंगे उसको रिस्पॉन्ड करना, उसके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना, ये बाकी के मेंबर्स करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि पहले से उसने बहुत सारे फ्लॉज आइडेंटिफाई किए हैं, तो क्या होता है मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं व्हेन दैट सोल्यूशन हैज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट। So it helps to avoid the costly mistake by identifying the pitfalls in advance. Next is what, electronic meeting. आजकल हमें पता है कि बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, कोरोना के टाइम से ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग होती है। सो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू कनेक्टेड कंप्यूटर टर्मिनल्स। सो हियर it is not necessary that all members should present physically. So they interact through the computers, projector screens होते हैं यूज टू शो द इंडिविजुअल्स कमेंट्स, उनके वोट्स जो भी है। क्या होता है कि ऑफलाइन मीटिंग होती है ना, तो व्हेन द मीटिंग इज़ ऑफलाइन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सोशलाइजिंग, और जब व्हेन इट कम्स टू द ऑनलाइन मीटिंग आप डिस्कस करते हैं डायरेक्टली एजेंडा, यू कांट वेग डाइवर्ट नहीं होता वो टॉपिक, एजेंडा डिस्कस कर लो एंड लीव दैट मीटिंग, ओके। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। सो दिस मेथड रिड्यूस द ग्रुप थिंग एंड द टाइम वेस्टेज इन अ सोशलाइजिंग इन द मीटिंग। फिश बाउलिंग टेक्निक, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स। ये जो है आपको फिश बाउल पता होगा, फिश टैंक जैसा होता है बाउल ना, गोल एक मटके जैसा होता है कांच वाला, उसमें फिशेस हम रखते हैं। सो सेम काइंड सर्कल वो कंसिडर करना, याद रखना, बिकॉज मेंबर्स, ऑल जो मेंबर्स है दे आर सिटेड इन अ सर्कल, ओके। सो हियर यू कैन सी द इमेज। सो इन सेंटर एक पर्सन है, एक सर्कल है, दैट इज़ द इनर सर्कल, एक आउटर सर्कल है, और बीच में एक बंदा बैठा है, दैट इज़ व्हाट द फैसिलिटेटर। सो इनर सर्कल क्या होता है, इनर सर्कल मतलब जो भी मेंबर सर्कल में बैठे हैं, बाउल में बैठे हैं, ओके, बाउल की बाउंड्री जो है वो मेंबर्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन। outer circle is what, the member who listen and observe only, they will not participate in discussion, they only observe. At the center जो भी बंदा है, person है, that person will be facilitator and he gives the suggestion to the problem. जो inner circle में जो भी members रहेंगे ना,
उनको जो भी इंटरेक्शन करना है, दे कांट इंटरैक्ट विद द अदर पर्सन, दे हैव टू ओनली इंटरैक्ट विद द फैसिलिटेटर। वो अपने आप से नहीं बात कर सकते, आपके बगल में जो बैठा है उससे बात नहीं कर सकते, उसके साथ डिस्कस नहीं करते। वॉट एवर यू हैव डाउट यू जस्ट आस्क टू द फैसिलिटेटर, दैट इज़ वॉट द फिश बॉल। और उसके बाद आफ्टर सम टाइम अगर ये एक्टिविटी करनी है तो वो क्या करते हैं, स्वैप द सर्कल, मतलब जो आउटर सर्कल में बैठे थे अभी वो इनर सर्कल में बैठेंगे, इनर वाले आउटर साइड में। इवन फैसिलिटेटर अगर वही कंटिन्यू करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन चेंज, जो इनर में पहले बैठे थे उसमें से भी एक बंदा अंदर एज ए फैसिलिटेटर बैठ सकता है। So this is what the fishbowl, after all views and express the one with the consequence is going to be selected. The next is what, didactic interaction. So this is used only where there is a yes or no application is available. So here two groups are created. Obviously one group is favoring the yes and other is favoring to the no option. कोई टॉपिक रहेगा, अगर कोई फेवर में जा रहा है, जैसे कि हम डिबेट करते हैं ना, काइंड ऑफ डिबेट, ये डिडैक्टिक इंटरेक्शन, डिडैक्टिक एंड डिबेट, ये याद रखना। तो यस नो फेवर होता है ना, एक अगेंस्ट बोलता है, एक फेवर में बोलता है। हियर आल्सो अगर आप यस बोलते हो तो वाई यू आर सेइंग द यस, तो यू हैव टू गिव योर रीजंस। इफ़ यू आर फेवरिंग द नो, सो यू हैव टू गिव द रीजंस। Okay, so this is kind of debate. So sometime it is going to be difficult to take a decision. इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी अदर पार्टी है ना, they needs to convince the other party. तो अगर हाँ का डिसीजन करना है, यस का, तो you have to convince those who are saying no. So no का कन्वर्जन यस में होना चाहिए, तब जाके वो कंसिडर किया जाएगा। The next one is what? इंटरैक्टिंग द ग्रुप्स। सो यहाँ पे इंटरैक्शन, दिस इज़ द लास्ट टेक्निक, इंटरैक्टिंग द ग्रुप्स। फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन अ ग्रुप हैपन इन अ मीटिंग, जो हमें पता है कि इंटरैक्शन से होता है। सो डिसएडवांटेजेस क्या है कि द डिसीजन टेकन इन द इंटरैक्टिंग ग्रुप्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रुप थिंग। क्या होता है कि बहुत लोग सब इकट्ठा है, और कभी कभी क्या होता है कि 7 लोग का जो भी बोलना है, अगर मेरा ओपिनियन उनसे अलग है बट सब बोल रहे हैं, इसलिए मुझे भी वो प्रेशर आता है कि चलो मुझे भी हाँ में हाँ उनके मिलाना है, बिकॉज इंटरेक्शन चल रहा है, तो वो प्रेशराइज किया जाता है टू कन्फर्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्निक्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग. I hope now you understand the concept. Thank you so much. Bye.